جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں خالی سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں یہ بحران پیدا ہوگا. اور جب یہ بحران پیدا ہوگا پھر ATMs مشین جاگیں گی, پھر اور گندم امپورٹ کی جائے گی. ادھر آپ پنجاب میں رکھتے ہو 1900 روپے ریٹ, مگر آپ منگاتے ہو باہر سے جو کاسٹ کر رہی ہے آپ کو 6,500 روپے. آپ وہ کسان کو فائدہ کیوں نہیں دے رہے؟ سندھ گورنمنٹ نے 2200 روپے ریٹ رکھا ہے اور اس وقت اوپن مارکیٹ کیوں بڑی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیوں؟ پھر بارڈرز کھولے گئے, پھر کنیکٹ شروع ہو گئی افغانستان کی طرف جانا. کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں بارڈر کھول رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنے ملک کو اسٹیبل کریں, اپنی پرائسز کنٹرول کریں, آپ بارڈر بند کریں, پرائسز آٹومیٹکلی پورے پاکستان نیچے آ جائیں گی. کون سے ایسے چیز ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو مجبور کر رہے ہیں کہ یہ بارڈر کھلے اور گندم ہماری جائے باہر؟ ایک ٹائم پر ہم ایکسپورٹ کرنے والے ملک تھے اور پھر 15 سالوں کے اندر واپس ہم امپورٹ پر آ گئے. ان چیزوں کا پوچھنا چاہیے آپ لوگ کو. میں پوچھ رہا ہوں کیوں آپ بولتے ہیں کہ میں بمپر کراپ, پنجاب میں بمپر کراپ, جدھر کدھر بمپر کراپ, تو پھر آپ نے امپورٹ کیوں کی ہے؟ کیوں نہیں وہ فائدہ دیا آپ نے؟ انسٹیڈ آپ ڈالر خرچنے ملک کے, آپ نے اپنے عام کسان کو کیوں نہیں فائدہ دیا؟ پچھلی بار بھی گورنمنٹ کا ریٹ 200 روپے ہائر تھا پنجاب گورنمنٹ سے, اس بار 300 روپے زیادہ ہے. ہم تو اپنے کسان کا خیال کریں مگر وہ کسان بیچارہ جائے کہاں کہ وہ یوریا کے بیگ کے لیے در بدر پھر رہا ہے. کہاں کے سوئے ہوئے تھے جب یوریا کی شارٹیج کا ابابدار پنجاب سے جدھر کدھر سے بول رہے تھے کہ بھائی آنکھیں کھولو یوریا کی شارٹیج آ رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی. کیوں نہیں گیس سپلائی کی ان لوگوں نے؟ اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہماری ہے پاکستان کی, جو سندھ میں فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, کیوں گیس بند کر دی ان کی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک ایگریکلچر پر ریلائی کرتا ہے, آپ نے جو ایگریکلچر سیکٹر کی چیزیں پروڈکشن کرتے ہیں یوریا وغیرہ, آپ نے ان کی 3 مہینے گیس کیوں بند کی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو امپورٹ کرنی تھی. کسی اور ATM کا پروگرام ہوتا ہو کہ جیسے یوریا کی بھی شارٹیج ہو, مارکیٹ بڑھے, 1780 روپے کا ریٹ 2700 روپے میں بکے. کون سی ایسی مافیا ہے؟ کیوں نہیں ڈسکلوز کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈسکلوز کریں نا, کیوں ہوا ایسا؟ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں صحیح بھائی صحیح بولا کہ بالکل یہ بحران پیدا ہوگا آٹے کا. جب آپ کی گندم کی پیداوار کم ہوگی تو ظاہری بات ہے جب گندم کی پیداوار کم ہوگی ہماری جو کنزمپشن ہے ہر سال بڑھتی ہے, اور جب ہماری پروڈکشن ہی کم ہوگی تو مجبوراً ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. اور امپورٹ کون کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, صوبائی گورنمنٹس نہیں کرتی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک اور پلاننگ چل رہی ہے. اور جہاں تک کوالٹی کی بات ہے, بالکل جی, یوکرین کی جو ویٹ ہے اس کو کھانے کے لیے 70% گندم ہمیں اپنی لوکل مکس کر یوز کرنی پڑتی ہے. 70-30 کا ریشو ہوتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ہماری جو گندم, ہماری جو زمینوں میں گندم پیداوار ہوتی ہے وہ اٹ از ٹاپ آف دا لائن کوالٹی کی گندم ہوتی ہے. شکر الحمدللہ, ٹاپ آف دا لائن. جب ایکسپورٹ کرتے تھے تو یوکرین کی گندم سے ہمارے ریٹ $30 $40 پر میٹرک ٹن زیادہ میں جاتی تھی گندم, اور آج بھی وہ 386 روپے کے حساب سے پر میٹرک ٹن کے حساب سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. اپنا زر مبادلہ بھی آپ خرچ رہے ہیں, وہی اربوں روپے اگر آپ فارمر کو پرچیزنگ میں زیادہ دے دیں تو آپ کا عام فارمر خوشحال ہوگا, آپ کا ملک خوشحال ہوگا. سیکنڈ صاحب یہ بتائیے گا, جماعت اسلامی نے سیکنڈ فیز کیا ہے, 5 شاہراہوں پر جو ہے وہ دھرنا دیں گے, اور 28 کو یہ نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے, یونیورسٹی روڈ, شارع فیصل, مانی پور روڈ کو بند کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ اور غلط فیصلہ ہوگا اگر وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ مین شاہراہیں بند کریں گے تو آپ کراچی شہر کے لاکھوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. پورا من احتجاج کا حق سب کو ہے, لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی اور کا حق شروع ہوتا ہے.
सड़कों पर ट्रैफिक रोकना किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है, और मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि कोई मुनासिब तरीका, या बैठे हैं ना, हालांकि ये भी गलत है, रेड जोन में है, नहीं बैठ सकते, बैठे नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तो ज्यादती होगी, और ये तो मतलब उकसा रहे हैं कि जी हुकूमत या जो इदारे हैं इनको जरूरत रोकें और ना करने दें। अब अगर कोई इस बात पर तुला है कि मैं दीवार में टक्कर मारूंगा तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कराची के लोगों के साथ ज्यादती होगी, ये नामुनासिब बात है। आप एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप वहाँ क्या आप करते रहिए, जलसे कीजिए, जुलूस कीजिए। एक मरतबा पहले भी उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड पर बगैर किसी इजाजत के मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो जलसा कर दिया बगैर किसी को बताए हुए, चले वो भी हो गया। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि हम कराची के लोगों को तकलीफ में डालना चाहते हैं तो फिर इस बदनीयती का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। क्या है ये कानून बनाया जा रहा था कि जो डिफाल्टर मिले हैं या जिन्होंने प्ले बार्गेनिंग की है या जो 6 महीने से बंद है उनको जो गंदम है इस तरह का कानून बन गया है कानून का? जी बिल्कुल, कैबिनेट का डिसीजन था कि जितने भी डिफॉल्टर्स मिले हैं उन डिफॉल्ट मिल्स को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करके नहीं दिया जाएगा, और इनमें से कुछ मिलों ने हाईकोर्ट से ऑर्डर्स किए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनको प्रोवाइड की जाए। तो जो मिले मेरे ख्याल में आउट ऑफ 42 या 45 मिल से टोटल 6 या 7 मिलों को परमिशन मिली है, बाकी सब अभी तक ब्लैक लिस्टेड है और उनको कोटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और ये कैबिनेट का डिसीजन है। सर मुझे ख्याल में तो इनके दो कोई कम आए को बस सिंध गवर्नमेंट, मिंडर में भी सिंध गवर्नमेंट याद था ना, उत्थिंदा भी सिंध गवर्नमेंट याद था ना, सब जगह के सिंध गवर्नमेंट याद था ना। जो काम ये गलत करता है, यूरिया है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, डीलर्स को प्रोवाइड करती है कोटा सिस्टम पर कंपनियां, तो खाली सिंध से क्यों स्मगल हुई? क्या डीलर्स पंजाब में नहीं है, डीलर्स बलोचिस्तान में नहीं है, डीलर्स केपीके में नहीं है, खाली क्या यूरिया सिंध में यूज होती है? तो जो ये चीज गलत करते हैं और कुछ नहीं है भाई, तो होते हैं ना भाइयों में बड़े भाई छोटे भाई, तो बड़ा भाई भी गलत करेगा, छोटे को मारेगा, तुमने गलत किया है, उठकर इनका काम ही यही है, इनको और कोई काम धंधा है नहीं, पता कुछ है नहीं, तो जो चीज है बस इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अभी ये आपको शायद ये भी खबर आ जाएगी कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है ना, इसीलिए सिंह की वजह से होगी। कल एक सिंध हुकूमत के एक अफसर मसरूर मेमन की गिरफ्तारी हुई, जिनके घर से जो फैसले में उसको गिरने के लिए भी मशीन लाना पड़ी। तो सूबाई हुकूमत का अपना एंटी करप्शन का महकमा था, उसमें तो विफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करती कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको आखिर तक पोस्टिंग दी जाती रही, इसकी क्या वजह थी? देखिए, एक तो जो मैंने पढ़ा टीवी पे अखबार में उसमें था कि शायद पिंडी नैब ने छापा मारा है और उनको गिरफ्तार किया। तो अगर आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी सिंध के एंटी करप्शन ने क्यों नहीं किया, तो सवाल ये भी है कि नैब कराची ने क्यों नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो देखें, जिस इदारे को कोई इंफॉर्मेशन आती है या गालिबन इसमें शायद मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तहकीकात पहले से जारी होगी, और वो तहकीकात हो रही होगी, उसके नतीजे में शायद उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और फिर ये रिकवरी भी हुई। लेकिन सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी कोई जिन्नात है, ना कोई पीरनी है, ना कोई चीज़ कि हमें वो बताएं कि फिला अफसर के घर में इतना पैसा पड़ा है, इतना जेवर पड़ा है, जो है आप जाके रिकवर करा लें। तो हमारे पास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है, पता चलता है, तो जाहिर है कि एंटी करप्शन की कार्रवाई करेगी, और जिसने जिम्मे बनता है कि कोई एक्शन है वो जरूर लेंगे। सवाल आता है सीएम हाउस चाहे वो मुख्तलिफ माजी में घना आया हूँ, उन्होंने देखिए, एक तो शायद अभी 24-25 दिन हुए, 2 महीने नहीं हुए, लेकिन जाहिर है कि जब वो इंसान परेशान होता है और रुकावट होती है रास्ते में, तो बहुत तकलीफ होती है, लगता है कि बड़ा वक्त हो गया है। मैं ये सोचता हूँ कि प्रोटेस्ट करने का एक तरीक़ेकार होता है,
और कोई भी प्रोटेस्ट आप ऐसी नहीं करते हैं कि आप वहाँ खड़े हो जाएं कि नहीं मेरी बात नहीं मानोगे तो मैंने तो उठना ही नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि ये आपने ये चीज़ की है वो गलत है, उसके ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर एक असेंबली में एक रुकन वाली जमात जो है वो तय कर ले, वो कह रहे हैं ना पूरा शहर में सारी सड़कें बंद करेंगे, वो कहते हैं पूरे कराची के लोग आजाद में डालेंगे हम आपसे ये चीज़ कराएंगे, तो ये खुदा ना खासा कर दो कोई हाफिज साहब ये नहीं कहते तुम नहीं करोगे तो खुदकुशी करो, तो एक और मसला वाली पैदा हो जाएगा। ये इस तरह ये जो रवैये हैं ये गैर संजीदा रवैये हैं, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है, तरमीम असेंबली में होती है, आप असेंबली में आए, आपकी बात जरूर सुनेंगे, जो चीज़ें बेहतर होंगी होंगी कानून को बेहतर कर सकती हैं हम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सारी जिंदगी बैठे रहे 2001 वाला कानून नहीं आएगा, इसलिए कि वो पंजाब में भी नहीं है, वो KPK में भी नहीं है, वो इस्लामाबाद में भी नहीं है, वो बलुचिस्तान में भी नहीं है। तो सिर्फ सिंध के अंदर एक जमात वाली मेंबर तो नाफिज नहीं करा सकती ना 2001 का कानून, तो ये नामुनासिब तरीक़ेकार है। बातचीत हमारे दोस्तों की इनसे हो रही है, हम जरूर चाहेंगे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर लें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हट दर्मी में कोई अगर बैठ जाए कि जी मैं साल में बैठा रहूंगा जब तक मेरी बात नहीं मानोगे नहीं उठूंगा तो बैठे होंगे। आजकल सेहत कार्ड का बड़ा चर्चा है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि थर में भी कार्ड देंगे। थर क्या सिंध में नहीं है जो वफाकी हुकूमत थर में तो कार्ड दे पा रही है, बाकी इल्जाम लगाती है सिंध हुकूमत सेहत कार्ड नहीं दे रही। देखिए इसमें जो मुझे मालूम है मुकेश मुझे करेक्ट करें, एक वो राशन कार्ड वाली भी कहानी है, उस पर भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत नहीं दे रही बाकी हुकूमत दे रहे हैं, एक उसमें ये नई चीज आ गई है। इसमें ये सूबाई हुकूमतों से हिस्सा लेते हैं। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से दिया तो फिर हमें क्या था, किसी को भी दे जो लेना चाहते ले ले भाई। अब थरले तो दखल आपके दे रहे हैं ना, इसका मतलब है वफाकी हुकूमत उसमें पैसे डालेगी तो पूरे सिंध लोगों को जाके दे दें। लेकिन बुनियादी एतराज हमारा ये है कि इस तरीके से आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को बिल्कुल ही उनसे लाताल्लुक हो जाएंगे। और जरूर इस बात की है कि हर हुकूमत अपने सरकारी इदारों को बेहतर करे, मजबूत करे, उनको इस काबिल बनाए कि वो आपके शहरियों को बेहतर की सहूलतें फराहम कर सके। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आपको सबको पता है